to Aspen IAS. Aspen IAS is launching a prelims fast track course for prelims 2022. This online course is built for aspirants to crack CSE prelims. This entire course is going to be free of cost. The content we'll be covering in this course will be general studies, which is going to be prelims focused. We are not going to cover entire general studies for CSE. We are going to do it in a prelims focused way. We'll be discussing past 5 years GS paper 1 questions. Also, we'll be covering 1.5 years current affairs, which are going to be prelims focused. Our goal in this course will be to crack prelims 2022. Classes will be uploaded daily, and calendar for this course would be from Monday to Thursday we'll be covering static portion, and Friday and Saturday we'll be covering current affairs, and on Sunday we'll be doing the previous year questions. Today we'll be starting with the polity part, so let's start. So we'll be dealing with the history of all the acts and charters that were introduced by the British government, starting with Regulating Act of 1773. What was the significance of this act? The significance of this act was that it recognized political and administrative function of East India Company. Till now, the East India Company was a trading company, but it was first time that the political and administrative function of East India Company were recognized. This was the foundation of central administration in India. Till now, the administration wasn't central. Different provinces were there, different presidencies were there, but there was never a central administration. With Regulating Act of 1773, central administration was brought in India. What were the features of Regulating Act of 1773? Governor of Bengal was now known as the Governor General of Bengal. And who was the first Governor General? He was Warren Hastings. Also, Executive Council with 4 members was made. It was the first time that Executive Council was made. इसके बाद भी Executive Council आएंगे जिनमें नंबर घटते बढ़ते रहेंगे, बट दिस वॉज द फर्स्ट टाइम जब Executive Council लेके आए थे 4 मेंबर की. सबऑर्डिनेशन ऑफ गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास टू गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल. सो बॉम्बे एंड मद्रास के जो गवर्नर्स थे उनको सबऑर्डिनेट बना दिया गया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के. सुप्रीम कोर्ट इस्टेब्लिश किया गया कैलकाटा में, एंड servants were prohibited from trading with natives. See, what happened was company had its servant and it was trading, but some servants were doing the private trade. So in order to save company the revenue it was losing because of this activity, they prohibited servants from trading with the natives. Strengthened British government control by requiring court of directors to report revenue, civil and military affairs. So court of directors were required to report revenue, civil and military affairs to the British government. So this is Regulating Act of 1770. This all is sufficient for prelims. When we'll do mains, we'll discuss more about the pros and cons. Just for the prelims, it's sufficient. Amending Act of 1781. There were some lack of regulations, or like there was some gap in the Regulating Act of 1773, so they brought an Amending Act of 1781. So what were the features of Amending Act of 1781? Let's study them. This exempted Governor General and its council servants of company from jurisdiction of Supreme Court for acts done in official capacity. So what is this saying? That सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन से बाहर निकाल दिया गवर्नर जनरल, उसकी काउंसिल और सर्वेंट्स ऑफ कंपनी को. रेवेन्यू मैटर्स को भी जुरिस्डिक्शन से हटा दिया सुप्रीम कोर्ट की. अपील्स फ्रॉम प्रोविंशियल कोर्ट्स कुड बी टेकन टू गवर्नर जनरल इन काउंसिल, नॉट टू सुप्रीम कोर्ट. प्रोविंशियल कोर्ट्स की जो अपील थी वो गवर्नर जनरल इन काउंसिल के पास ले जा सकते थे, सुप्रीम कोर्ट के पास ले जाना ना कर दिया. गवर्नर जनरल टू फ्रेम रेगुलेशंस फॉर प्रोविंशियल कोर्ट्स एंड काउंसिल. गवर्नर जनरल जो थे वही प्रोविंशियल कोर्ट और काउंसिल के रेगुलेशन बनाएंगे, सुप्रीम कोर्ट नहीं बनाए. तो इसमें ओवरऑल किया गया था अमेंडिंग एक्ट में, जो सुप्रीम कोर्ट की पावर थी उसकी जुरिस्डिक्शन से कंपनी को बाहर निकाल दिया था, अपने आप को उन्होंने सेफ गार्ड कर लिया था.
ओके, सो नेक्स्ट इज पिट्स इंडिया एक्ट और ईस्ट इंडिया कंपनी एक्ट 1784। गाइज मैं ये कहना चाहूँगा कि हम थोड़ा इसमें फास्ट ट्रैक रखेंगे कोर्स को। हमें काफ़ी सारा कोर्स, वी हैव टू कंप्लीट अ लॉट ऑफ सिलेबस in just a short span of time and we have to revise it also. So I'll be taking it a little bit fast. मुझे आप लोग फास्ट ट्रैक कोर्स देख रहे हैं तो मुझे ये है कि आपने कुछ पहले भी पढ़ा होगा और कुछ ना कुछ रिवाइज किया होगा, तो ये आपको एक क्रिस्प नॉलेज देने के लिए कोर्स बनाया है मैंने, ताकि आप फटाफट रिवाइज कर सकें चीज़ों को, और जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिन्हें याद रखना ज़रूरी है फॉर प्रीलिम्स वो आप याद करें, और क्वेश्चन आएँ तो आप उनका अच्छे से आंसर दे पाएँ. सो वी विल बी स्टडिंग पिट्स इंडिया एक्ट, or it is also known as East India Company Act of 1784. So what was the significance of Pitt's India Act? First time British possessions in India term was used. पहली बार ये टर्म यूज़ किया गया था, ब्रिटिश पोजेशंस इन इंडिया. ब्रिटिश गवर्नमेंट गिवन सुप्रीम कंट्रोल ओवर कंपनी अफेयर्स. ब्रिटिश गवर्नमेंट को सुप्रीम कंट्रोल दे दिया था कंपनी के अफेयर्स के ऊपर और एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर इंडिया के अंदर. ठीक है. फीचर्स व्हाट वर द फीचर्स ऑफ पिट्स इंडिया एक्ट? तो डिस्टिंक्शन ऑफ कमर्शियल एंड पॉलिटिकल फंक्शन ऑफ कंपनी. पहली बार हुआ कि कमर्शियल और पॉलिटिकल फंक्शन को डिस्टिंग्विश किया गया. डुअल गवर्नमेंट बाय क्रिएशन ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल. बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया और डुअल गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट लाया गया इंडियन पॉलिटी में. 6 मेंबर थे इस बोर्ड ऑफ कंट्रोल में. 6 मेंबर थे जिनका हेड था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, जो मैनेज करता था पॉलिटिकल अफेयर. तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल का काम क्या था कि इंडिया में जो है इस ईस्ट इंडिया कंपनी के पॉलिटिकल अफेयर्स को मैनेज करना. बोर्ड ऑफ कंट्रोल एम्पावर टू सुपरवाइज डायरेक्ट ऑल ऑपरेशंस ऑफ सिविल, मिलिट्री एंड रेवेन्यू. ओके, सो ईस्ट इंडिया कंपनी एक्ट ऑफ 1784 इज डन हियर. नाउ वी विल बी मूविंग टू एक्ट ऑफ 1786. फीचर्स क्या थे? फर्स्ट, द गवर्नर जनरल गिवन पावर टू ओवरराइड काउंसिल इन स्पेशल केसेस. गवर्नर जनरल को कुछ पावर दी थी कि वो काउंसिल की को ओवरराइड कर सके. कुछ स्पेशल होता क्या था, जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी वो गवर्नर जनरल की चलने नहीं देती थी. तो उसके लिए कि गवर्नर जनरल को और पावर दे सकें, इसके लिए एक्ट ऑफ 1786 लाया गया था, जिसके थ्रू गवर्नर जनरल को अब ओवरराइड करने का चांस दे दिया गया था कुछ स्पेशल केसेस में. लॉर्ड कॉर्नवालिस बिकेम कमांडर इन चीफ अलॉन्ग विद गवर्नर जनरल. तो वो मिलिट्री के भी चीफ बन गए गवर्नर जनरल के साथ साथ, कॉर्नवालिस. सो ये फैक्ट याद रखना. नेक्स्ट है चार्टर एक्ट ऑफ 1793. चार्टर एक्ट ऑफ 1793. व्हाट वर द फीचर्स? रॉयल अप्रूवल टू अपॉइंट गवर्नर जनरल, गवर्नर कमांडर इन चीफ. सो व्हाट इस एक्ट में क्या किया है कि गवर्नर जनरल, गवर्नर और कमांडर इन चीफ को अपॉइंट करने के लिए आपको रॉयल अप्रूवल लेना पड़ेगा. सीनियर ऑफिशियल्स ऑफ कंपनी कैन नॉट लीव इंडिया विदाउट परमिशन. बिना परमिशन के सीनियर ऑफिशियल जो थे कंपनी के, वो इंडिया को नहीं छोड़ सकते थे. EIC, थर्ड पॉइंट, EIC वॉज एम्पावर्ड टू गिव लाइसेंसेज फॉर ट्रेड इन इंडिया. ईस्ट इंडिया कंपनी को एम्पावर कर दिया कि आप लाइसेंसेज दो ताकि ट्रेड में, इंडिया में ट्रेड करने के लिए. रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन को कम्प्लीटली सेपरेट कर दिया जुडिशरी के फंक्शन से. होम गवर्नमेंट टू बी पेड फ्रॉम इंडियन रेवेन्यू. इंडिया में की जो गवर्नमेंट है उसको इंडिया के रेवेन्यू से ही चलाओ तुम, ये बोल दिया था ब्रिटिश गवर्नमेंट ने. कमांडर इन चीफ नॉट टू बी मेंबर ऑफ गवर्नर जनरल्स काउंसिल अनलेस सो अपॉइंटेड. कमांडर इन चीफ जो था मिलिट्री का हेड, वो गवर्नर जनरल की काउंसिल से ना हो तो ही बेटर है. तो नेक्स्ट इज चार्टर एक्ट ऑफ 1813. What was the significance of Charter Act of 1830? Charter Act of Constitutional position of territory in India defined explicitly for first time. So territory of India को एक constitutional position दे दिया गया था ब्रिटिश कैबिनेट में, और ये पहली बार ऐसा हुआ था. फीचर्स क्या थे? एंडेड मोनोपली ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी. ईस्ट इंडिया कंपनी को मोनोपली को एंड कर दिया था, जो इतने सालों से मोनोपली कर रही थी. केवल टी और ओपियम को छोड़ के, जो कि चाइना के साथ करती थी. यहाँ पर इनकी मोनोपली थी कि टी एंड ओपियम ट्रेड विद चाइना वॉज अ मोनोपली ऑफ EIC, एंड जो मोनोपली इंडिया के साथ थी उसको एंड कर दिया गया. ऑल्सो दे परमिटेड क्रिश्चियन मिशनरीज टू प्रोपोगेट इंग्लिश एंड प्रीच रिलीजन. तो क्रिश्चियन मिशनरीज को इंग्लिश प्रोपोगेट और रिलीजन प्रोपोगेट करने के लिए परमिशन दे दी गई थी. एजुकेशन के लिए 1 लाख रुपए अलॉट किए गए थे
जो कि वो भी यूज़ नहीं होते ढंग से। रेगुलेशंस क्या क्या थे? रेगुलेशन मेड बाय बॉम्बे, मद्रास, बंगाल प्रेसिडेंसीज टू बी लेड बिफोर ब्रिटिश पार्लियामेंट। जो भी रेगुलेशन बनाएंगे ये इंडिविजुअल प्रेसिडेंसीज बॉम्बे, मद्रास और बंगाल, उसको ब्रिटिश पार्लियामेंट के आगे लेट करना पड़ेगा। नेक्स्ट वी हैव चार्टर एक्ट ऑफ 1833। इन चार्टर एक्ट ऑफ 1833 सिग्निफिकेंस क्या था इस चार्टर एक्ट का? फाइनल स्टेप ऑफ सेंट्रलाइजेशन। इट वॉज द फाइनल स्टेप ऑफ सेंट्रलाइजेशन। इसके बाद पूरा सेंट्रलाइज हो चुका था ब्रिटिश का कंट्रोल इंडिया के ऊपर। फीचर्स क्या थे? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बिकेम गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। कौन थे फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया? विलियम बेंटिक। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ऑल सिविल एंड मिलिट्री पावर, अथॉरिटी ओवर एंटायर ब्रिटिश टेरिटरी, एक्सक्लूसिव लेजिस्लेटिव पावर फॉर एंटायर टेरिटरी। सो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को पूरी सिविल और मिलिट्री पावर दे दी थी इस एंटायर ब्रिटिश टेरिटरी के ऊपर, और एक्सक्लूसिव लेजिस्लेटिव पावर फॉर एंटायर टेरिटरी दे दी गई थी। गवर्नर जनरल ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास वर डिप्राइव्ड ऑफ देयर लेजिस्लेटिव पावर्स। इनकी लेजिस्लेटिव पावर छीन ली गई थी, इनकी ये हटा दिया इनको, और सारी पावर किसको दे दी थी? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को। ईस्ट इंडिया कंपनी ended activities as commercial body, ended monopoly, now purely administrative body। ईस्ट इंडिया कंपनी का कमर्शियल एज अ कमर्शियल बॉडी ख़त्म हो चुकी थी और अब एक केवल एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बन के रखी थी। अटेम्प्ट टू इंट्रोड्यूस ओपन कंपटीशन बट फेल्ड एज कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स सजेस्टेड। इन्होंने अटेम्प्ट किया कि हम ओपन कंपटीशन लेके आए सिविल सर्विसेज इनमें, बट कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने इसे रजिस्ट कर दिया। इंडियन लॉज को कोडिफाइड करना और कंसोलिडेट करने का स्टेप लिया गया, और स्लेवरी भी अबॉलिश करने के स्टेप्स लिए गए। लॉ मेंबर एडेड टू गवर्नर जनरल्स काउंसिल। नेक्स्ट इज चार्टर एक्ट ऑफ 1853। So what was the significance of Charter Act of 1853? It was the last of series of Charter Act, was a significant constitutional landmark. Features: separated legislative and executive function of Governor General of India's Council, establishment of Indian Legislative Council, that is mini parliament, introduced open competition in civil services, covenanted posts were now open for Indians, local representation in Indian Legislative Council, that is provincial legislature nominated 4 members, बॉम्बे, मद्रास, बंगाल, आगरा, 2 ILC। तो देखो बहुत इंपॉर्टेंट था चार्टर एक्ट ऑफ 1853। इसमें मिनी पार्लियामेंट रखा गया, सेपरेट किया गया लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव फंक्शन को, ओपन कंपटीशन इंट्रोड्यूस किया गया सिविल सर्विसेज में, और लोकल रिप्रेजेंटेशन किया गया ILC में 4 प्रोविंसेस से, बॉम्बे, मद्रास, बंगाल और आगरा। सो नेक्स्ट इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। What was the significance of Government of India 1858? In Government of India Act 1858, abolishment of EIC, ईस्ट इंडिया कंपनी को अबॉलिश कर दिया गया। जो भी पावर थी ईस्ट इंडिया कंपनी की ब्रिटिश क्राउन को ट्रांसफ़र कर दी गई थी। क्यों? क्योंकि हुआ था 1857 का रिवोल्ट, उसकी वजह से ब्रिटिश क्राउन का ईस्ट इंडिया कंपनी से पूरा विश्वास उठ चुका था और उन्होंने बोला कि सारी पावर हमें दे दो। फीचर्स क्या थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के? तो डायरेक्ट क्राउन रूल आ चुका था इंडिया में, अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एंड गवर्नर ऑफ प्रेसिडेंसीज को क्राउन, सीधा क्राउन ही अपॉइंट करता था इनको, गवर्नर जनरल और गवर्नर्स को। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वॉज मेड वाइसरॉय, क्राउन रिप्रेजेंटेटिव। कौन होता था वाइसरॉय? ही वॉज द क्राउन रिप्रेजेंटेटिव। कौन थे फर्स्ट वाइसरॉय इंडिया के? लॉर्ड कैनिंग। डुअल गवर्नमेंट को ऐड कर दिया गया जो कि पिट्स एक्ट में लेके आए थे, और अबॉलिश कर दिया बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो कि पॉलिटिकल विंग था, और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो कि कमर्शियल विंग था ईस्ट इंडिया कंपनी का। आपको जैसे पहले पढ़ाया था मैंने कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल एक पॉलिटिकल विंग था, और जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे वो कमर्शियल चीज़ें पर संभालते थे, और बोर्ड ऑफ कंट्रोल पॉलिटिकल संभालता था। इन दोनों को ही ख़त्म कर दिया गया था जो ये डुअल गवर्नमेंट पिट्स इंडिया एक्ट लेके आया था। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो था वो बनाया गया। मेंबर ऑफ, ये क्या होते थे? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मेंबर होते थे ब्रिटिश कैबिनेट के। कंप्लीट अथॉरिटी होती थी इनकी, एंड कंट्रोल ओवर इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन, अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी टू ब्रिटिश पार्लियामेंट, एंड क्रिएशन ऑफ इंडियन सिविल सर्विसेज अंडर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। तो सिविल सर्विसेज को किसके अंडर बनाया गया था? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के। और ये बहुत अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी इनकी किसको थी? ब्रिटिश पार्लियामेंट। काउंसिल ऑफ इंडिया
बनाया गया। ये क्या था, एडवाइजरी बॉडी थी जिसको सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हेड करता था। ऑल्सो नोन एज एक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो था वो एक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस के लिए लेके आया था, ताकि वापस से वो जैसे 1857 का रिवोल्ट हुआ था वापस वैसा ना हो, उसके लिए गुड गवर्नेंस का स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करी थी ब्रिटिशर्स ने। नेक्स्ट इज इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1861। What was the significance? Felt need of necessity of cooperation of Indians in administration। तो ब्रिटिशर्स को लग गया था कि अब इंडियंस की हमें मदद, कॉपरेशन चाहिए ही होगा अगर हमें इस देश पे अपना कंट्रोल रखना है। तो फीचर्स क्या क्या थे इसके? बिगनिंग ऑफ रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशन, पहली बार रिप्रेजेंटेशन को लाया गया और जिसमें इंडियंस को लाया गया इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल में। इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल में इंडियंस ही नहीं थे। क्या ब्रिटिशर्स का कैसे एडमिनिस्ट्रेशन करते थे इंडिया का, कि इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल जो कि इंडियंस को एडमिनिस्ट्रेट करने के लिए बने हुए, उसमें इंडियंस ही नहीं थे। तो पहली बार ऐसा हुआ था कि नॉमिनेट किया गया था इंडियंस को आईएलसी के अंदर। इनिशिएट किया था प्रोसेस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। व्हाट इज रिस्टोर्ड लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास टेकन इन चार्टर एक्ट। जो लेजिस्लेटिव पावर्स बॉम्बे और मद्रास की ले ली गई थी और सारी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को दे दी गई थी चार्टर एक्ट ऑफ 1823 में, वो 1861 के काउंसिल एक्ट में वापस दे दी गई बॉम्बे और मद्रास को। बट लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ कैलकाटा हैड पावर टू पास लॉज फॉर ब्रिटिश इंडिया एज होल। तो जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी कैलकाटा की, उसके पास पावर थी कि वो लॉज पास कर सके फॉर ब्रिटिश इंडिया एज अ होल। पोर्टफोलियो सिस्टम लाया गया। इसमें क्या होता था, मेंबर्स ऑफ वाइसरॉय काउंसिल मेड इन चार्ज ऑफ वन और मोर डिपार्टमेंट, दस ट्रांसफॉर्म्ड इंडियाज एग्जीक्यूटिव काउंसिल टू कैबिनेट रन पोर्टफोलियो सिस्टम। लाइक जैसे मिनिस्टर्स को भी पोर्टफोलियोज दिए जाते हैं, अलग अलग मिनिस्ट्रीज दी जाती है, वैसे ही जो वाइसरॉय काउंसिल के मेंबर्स थे उनको वन और मोर डिपार्टमेंट दे दिए गए। तो ऐसे पोर्टफोलियो सिस्टम लाया गया था। ऑर्डिनेंसेस, बिना आईएलसी के, जैसे अभी आते हैं ऑर्डिनेंसेस आते हैं, प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस निकालते बिना लेजिस्लेटिव काउंसिल असेंबली के अप्रूवल के, लोकसभा राज्यसभा के, वैसे ही उस टाइम ऑर्डिनेंसेस लाने के लिए बिना आईएलसी के तो लाए गए थे और ये 6 महीने इनकी वैलिडिटी रहती थी। नेक्स्ट इज इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1892। What was the significance of Indian Councils Act 1892? Element of indirect election लिखे आए, तो word election was not used in the act। election word यूज नहीं किया गया था, indirect election लेके आए थे। What was the features of this Indian Councils Act 1892? Increased non-official members in Indian Legislative Council and Provincial Legislative Council। non-official members को बढ़ा दिया गया, कहाँ पे, इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में। काउंसिल डिस्कस कर सकती थी बजट, आज क्वेश्चंस पूछ सकती थी एग्जीक्यूटिव से, बट नो सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस कुड बी आस्क्ड। नॉमिनेशन ऑफ सम नॉन ऑफिशियल्स मेंबर इन ILC by Viceroy on recommendation of Provincial Legislative Council, Provincial Legislative Council by Governor on recommendation of District Board, Municipality, University, Trade Association, Zamindar and Chips। Principle of representation was brought in this act। This is important। Principle of representation कब आया था? इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 में। जब हमारा ये पॉलिटी कंप्लीट हो जाएगा, इसके बाद हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे पॉलिटी के, जो 5 ईयर्स के। नेक्स्ट इज मॉडल मिंटो रिफॉर्म्स ऑफ 1909। What were the features? This introduced indirect election, non-official majority in provinces but not in center। non-official जो लोग थे जिन्हें डायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू लेके आए थे, उनकी मेजोरिटी प्रोविंसेस में तो होगी थी, बट सेंटर में अभी भी ऑफिशियल मेंबर्स जो थे वही थे। लेजिस्लेटिव काउंसिल रिफॉर्म्स लेके आए। इसमें क्या करा गया, साइज इंक्रीज करा गया, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन अलाउ करे गए बजट के लिए, और रेजोल्यूशन भी मूव कर सकते थे बजट में। इंडियंस इन एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ बोथ वाइसरॉय एंड गवर्नर। एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो होती है उसमें इंडियंस को अलाउ कर दिया था, और किस किस की होती थी, वाइसरॉय और गवर्नर की होती थी। वाइसरॉय के जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल में पहले मेंबर थे वो थे SP सिन्हा। द इलेक्टेड मेंबर्स वर फ्रॉम द लोकल बॉडीज, द चेंबर ऑफ कॉमर्स, लैंडलॉर्ड्स, यूनिवर्सिटीज, ट्रेडर्स, कम्युनिटीज़ एंड मुस्लिम्स। तो ये इलेक्टेड मेंबर्स लेके आए थे, वो कहाँ से आते थे, मुस्लिम्स होते थे, कम्युनिटीज़ होते थे, ट्रेडर्स, यूनिवर्सिटीज़, लैंडलॉर्ड्स, इन सबको लेके आते थे। सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया गया था इसमें मुस्लिम्स को।
मॉडल ऑफ रिफॉर्म्स गेव सेपरेट इलेक्टोरेट्स, ये क्वेश्चन आ सकता है कि विच एक्ट गेव द सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम, देन आंसर वुड बी मॉडल ऑफ रिफॉर्म्स. Next is Government of India Act 1919, that is Montfort reforms. सिग्निफिकेंस क्या था इन रिफॉर्म्स का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 का था? ब्रिटिश गवर्नमेंट क्लियर ऑब्जेक्टिव ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन सेपरेट प्रीएम्बल. प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्ट इलेक्शन वॉज फॉट. पहले क्या लिखा था? इनडायरेक्ट इलेक्शन. अब क्या लिखा है? डायरेक्ट इलेक्शन. ठीक है, धीरे धीरे चीज़ें इंडियंस के पास आती जा रही है. पहले तो बिल्कुल ही कुछ नहीं था. ILC बनी, फिर ILC के बाद इनडायरेक्ट इलेक्शन आया, फिर अब डायरेक्ट इलेक्शन आया. और इसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये भी बोल दिया था कि हम रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट लेके आएंगे. फीचर्स क्या क्या थे इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के? तो सेंटर और प्रोविंस में डिमार्केशन एंड सेपरेशन ऑफ सेंट्रल एंड प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स. डिमार्केट और सेपरेट किया गया सेंट्रल और जो प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स थे, जो सेंट्रली इंपॉर्टेंट थे. जैसे अभी होता है सेंट्रल लिस्ट है, यूनियन लिस्ट है और स्टेट लिस्ट होती है, वैसे ही उस टाइम पर क्या होता था? सेंट्रल और प्रोविंशियल सब्जेक्ट को लाया गया. बजट को सेपरेट किया गया. सेंट्रल का बजट लिखे है और प्रोविंशियल बजट लिखे है. सेंट्रल बजट जो था वोटेबल था 25% और नॉन वोटेबल था 75%. इस पर वोट नहीं कर सकते हो कि 75% ये तो जैसा है वैसे ही रहेगा. 25% जो था उस पर आप वोट करके उसको चेंज कर सकते. प्रोविंशियल बजट जो था वो उसको 100% वोटेबल था, वो फुल्ली वोटेबल, दस कैन बी रिजेक्टेड. तो उसको वोट करके रिजेक्ट कर सकते थे प्रोविंशियल बजट को, जो लोकल लेवल पे होता था. बट गवर्नर जो होता था वो उसको रिस्टोर कर सकता था. गवर्नर को पावर दी थी कि अगर ये रिजेक्ट भी हो जाए प्रोविंशियल बजट, लेकिन अगर आपको पास करना है तो आप पास कर सकते हो. प्रोविंसेस हैड रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, सेंटर नो रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट. सेंटर की रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट नहीं थी और यहाँ इलेक्टेड थी तो ये रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट थी. गवर्नर जनरल रिटेन्ड फुल कंट्रोल ओवर रिजर्व सब्जेक्ट ऑफ प्रोविंस. अब ये रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट हो गई, सारा पावर प्रोविंसेस के पास चला गया, लेकिन रिजर्व सब्जेक्ट जो थे अभी भी गवर्नर के पास थे. दूसरा क्या फीचर था इसका कि सिस्टम ऑफ डायरकी लेके आए. सिस्टम ऑफ डायरकी में क्या होता है कि दो रूल होते हैं डायरकी में. पहले तो ट्रांसफर सब्जेक्ट एडमिनिस्ट्रेटेड बाय गवर्नर विद एड एंड एडवाइस ऑफ मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर लेजिस्लेटिव काउंसिल लाइक एग्रीकल्चर, लोकल गवर्नमेंट, हेल्थ एंड एजुकेशन. और कुछ रिजर्व सब्जेक्ट होते थे जिसपे गवर्नर और उसके एग्जीक्यूटिव काउंसिल काम रूल्स बना सकते थे विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी टू लेजिस्लेटिव. देखिए जैसे दो डायर किया था, दो रूल हो गए. एक तो इलेक्टेड मेंबर्स के करेंगे, कुछ सब्जेक्ट्स पे लॉ बनाएंगे और कुछ पे गवर्नर बनाएंगे. इसी को कंटिन्यू करते हुए मॉन्टफोर्ट रिफॉर्म्स को बाइकैमरलिज्म का फीचर लिखा है सेंटर पे, जिसमें क्या था इंडियन लेजिस्लेटिव, जैसे अभी लोकसभा और राज्यसभा होती है तब इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल को दो में बांटा गया. जैसे काउंसिल ऑफ स्टेट जिसमें ओनली मेल अलाउड थे, और लेजिस्लेटिव असेंबली, बोथ हाउसेज हैविंग मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टली इलेक्टेड मेंबर्स. दोनों में मेजॉरिटी थी, किसकी थी? डायरेक्टली इलेक्टेड मेंबर्स की. वाइसरॉय की जो काउंसिल थी जिसमें 6 लोग हुआ करते थे उसमें थे 3 इंडियंस थे. सेपरेट इलेक्टोरेट लेके आए सिख, क्रिश्चियन, एंग्लो और यूरोपियंस के लिए. लिमिटेड फ्रेंचाइज ऑन बेसिस ऑफ सर्टेन मिनिमम टैक्स बेस. लिमिटेड फ्रेंचाइज मीन्स एवरी एडल्ट कांट वोट. कुछ टैक्स बेस बनाया गया कि जो लोग इतना टैक्स देते हैं, जिनकी इतनी ईयरली इनकम है, केवल वही लोग वोट दे सकते हैं. पब्लिक सर्विस कमीशन, सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन लेके आए 1926 में. हाई कमिश्नर फॉर इंडिया इन लंदन ट्रांसफर्ड सम फंक्शन ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट. हाई कमिश्नर का ऑफिस बनाया गया लंदन के अंदर, जिसमें कुछ सब्जेक्ट जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के थे वो उसको दे दिए गए थे. नेक्स्ट आता है साइमन कमीशन. साइमन कमीशन ने क्या किया था? एवोल्यूशन ऑफ डायरकी, एक्सटेंडेड रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन प्रोविंसेस, फेडरेशन ऑफ इंडिया और कंटिन्यू कम्युनियल इलेक्टेड. लेकिन जैसा आपको बताया कि ये रिजेक्ट कर दिया गया था साइमन कमीशन. फिर लेके आया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935. व्हाट वाज द सिग्निफिकेंस? कंप्लीटली रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट दी थी इन्होंने ब्रिटिशर्स ने. फीचर्स क्या थे? ऑल इंडिया फेडरेशन, डिवीजन ऑफ पावर, कैसे? फेडरल लिस्ट बनाएगी, प्रोविंशियल लिस्ट बनाएगी और कंकरेंट लिस्ट बनाएगी. जैसे यूनियन, स्टेट और कंकरेंट लिस्ट जो होती है उसी टाइम पे, जैसे फेडरल जो सेंटर की थी, प्रोविंशियल जो प्रोविंशियल लेवल पे थी, और कंकरेंट लिस्ट पे दोनों फेडरल और प्रोविंशियल बांट ली.
और रेस्यूटरी पावर भी थी जो कि वाइसरॉय के पास थी। डायर की क्या क्या किया गया, अबॉलिश कर दिया गया प्रोविंसेस में और सेंटर में। डायर की मतलब उसमें दो लोग रूल बनाते थे, वो उसको प्रोविंसेस में से हटा के और सेंटर पे अप्लाई कर दिया डायर की को। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, प्रोविंसेस को ऑटोनॉमी दी गई किसमें, एडमिनिस्ट्रेशन में। रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट थी, गवर्नमेंट टू एक्ट ऑन एड एंड एडवाइस ऑफ रिस्पॉन्सिबल मिनिस्टर्स। अथॉरिटी डायरेक्टली ड्रिवन फ्रॉम क्राउन। अथॉरिटी कहाँ से आ रही है प्रोविंसेस के बाद, क्राउन से आ रही है। इनको क्राउन अलाउ कर रहा है कि आप अपनी गवर्नमेंट बनाओ, बट अभी भी जिले इलाही तो क्राउन ही है। बाई कैमरलिज्म एट प्रोविंसेस, 6/11 ऑफ प्रोविंसेस में बाई कैमरलिज्म लेके आए, मतलब 2 हाउसेज बनाए गए। सेपरेट इलेक्टोरेट लेके आए किसके लिए, डिप्रेस्ड क्लासेस, वुमेन और लेबर्स के लिए। अबॉलिश्ड इंडियन काउंसिल एंड इंट्रोडक्शन ऑफ एडवाइजरी काउंसिल इन इट्स प्लेस। इंडियन काउंसिल को हटा दिया गया और एडवाइजरी काउंसिल को लाया गया। आरबीआई इस्टेब्लिश करी गई, और जो थे दूसरे पब्लिक सर्विस कमीशन जैसे कि फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, प्रोविंशियल सर्विस पब्लिक सर्विस कमीशन और जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन को इस्टेब्लिश किया गया। फेडरल कोर्ट बनाए गए और एक्सटेंडेड फ्रेंचाइज। और इसमें क्या हुआ कि 10% जो टोटल पॉपुलेशन थी उनको वोटिंग दे दी कि आप वोट कर सकते हो। तो ये लास्ट पे आ गए हैं जो कि है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। व्हाट आर द फीचर्स ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। इसमें क्या किया है, वाइसरॉय का जो ऑफिस था उसको अबॉलिश कर दिया गया। क्रिएटेड गवर्नर जनरल फॉर ईस्ट डोमिनियन अपॉइंटेड बाय किंग ऑन एडवाइस ऑफ डोमिनियन कैबिनेट। अबॉलिश्ड ऑफिस ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट टू कॉमनवेल्थ। जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का ऑफिस था इसको हटा दिया गया और किसको ट्रांसफर सब कर दिए गए सब्जेक्ट कॉमनवेल्थ को। फुल्ली सॉवरेन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, मतलब खुद सब, ये किसी के कंट्रोल में नहीं है, अपना खुद सॉवरेन का मतलब तो आप लोग जानते होंगे, तो खुद इंडिपेंडेंटली अपना काम कर सकती है, वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाएगी। इसमें क्या इनको दिया गया है, कैन रिपील एनी एक्ट ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट, तो कि ये किसी भी जो ब्रिटिश पार्लियामेंट के जो एक्ट्स थे उनको रिपील कर सकती है। लैप्स ऑफ पैरामाउंटेंसी ओवर प्रिंसली स्टेट्स एंड ट्रीटी रिलेशन विद ट्राइबल एरिया। जो प्रिंसली स्टेट के ऊपर जो क्राउन का जो रूल था वो उसको ख़त्म कर दिया गया, लैप्स हो गया वो। और जो ट्रीटी जो ये बनाते थे ट्राइबल एरियाज़ के साथ वो भी लैप्स हो गई। मोनार्क कांट वीटो बिल्स, जैसे पहले होता था कि मोनार्क बिल्स वीटो कर देता, वो मोनार्क अब नहीं कर सकता, जो वहाँ की क्वीन होती थी ब्रिटेन की। लेकिन कौन कर सकता था, गवर्नर जनरल, क्योंकि वाइसरॉय की जगह गवर्नर जनरल को लेके आए गए थे, तो वो कर सकता था वीटो अभी भी। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एंड गवर्नर्स ऑफ प्रोविंसेस, इनको क्या बना दिया गया, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एंड गवर्नर ऑफ प्रोविंसेस वर कॉन्स्टिट्यूशनल हेड्स हु एक्टेड ऑन एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इन ऑल मैटर्स। तो ऐसा कोई भी मैटर नहीं था जिसमें खुद से रूल बना सकते थे, हर मैटर में ये एड एंड एडवाइस पे ही काम करेंगे मिनिस्टर। एडमिनिस्ट्रेशन इन प्रोविंसेस टू बी रन अंडर द प्रोविजंस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। एडमिनिस्ट्रेशन किस पे चला रहे थे हम, 1935 के एक्ट में। सो गाइज दिस वाज ऑल अबाउट फॉर टुडेज लेक्चर। आने वाले लेक्चर्स जो होंगे वो और लंबे होंगे, ये एक इंट्रोडक्शन लेक्चर था। प्लीज़ थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड प्लीज़ आप मेरे चैनल से जुड़ें, सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें। एंड हम डेली ऐसे वीडियोस अपलोड करेंगे, और मैं चाहूँगा कि जल्द से जल्द आपका कोर्स ख़त्म हो, और बहुत ही क्रिस्प रखेंगे इसको, और टू द पॉइंट रहेगा ये कोर्स। एकदम सीरियसली अपन इसको कोर्स को कंप्लीट करेंगे। मंडे टू थर्सडे अपन स्टार्टिंग कंप्लीट करेंगे। सैटरडे संडे फ्राइडे सैटरडे विल बी डूइंग द करंट अफेयर्स जो 1.5 ईयर्स के हैं, और संडे को हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे। क्लासेस का टाइम थोड़ा बढ़ेगा, ये फर्स्ट क्लास थी जो कि अराउंड 30-35 मिनट्स की होगी, और नेक्स्ट क्लास से हम क्लास का टाइम भी बढ़ाएंगे और कंप्लीट करेंगे कोर्स को जितने भी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट। हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।